would we carry? And we thought that the best way to do that would be to have the vocabulary session in the very first go. And I gave B series. All okay? Everything right? Okay. Better. So we will begin with B series, and I told you to memorize B series, and I hope that you have done that. So we are going to revise that first of all, and then we would go for our writing. All right. So we have, where is it? Where is it? Where is it? Where is our vocabulary? I'm looking at the wrong folder altogether. So we are here. Okay, so let's begin. What do you think is the right answer? Alpha. Bash is to break. It can also be bang. Yes, bang is to like hit or strike. So bang is the right answer. B. All right. Banner. Here we are looking for a contextual meaning, and I believe that you will be able to find it very easily. Delta. No, it's not Delta actually, it's C, Charlie. And while 2015 was a banner year for the US auto sales, December ended with a relatively weak note. Say it. C. Okay. Basked. Let me show you. Basked is actually option C. Have you seen people lying in the beach, lying on the beach in the sun? Right, when they are relaxing, or this is a book called 4-Hour Workweek. Okay, and the title is really good because the word that we just discovered here, this man is lying here, lying on this piece of cloth. I don't know what they call it right now, but so if you can see this person lying around relaxing on a beach, this is actually the word meaning laxing or relaxing, or because you enjoy and let yourself be exposed to the warmth and the sunlight of the sun, right? So this is the word that we were actually doing. So he was basking in the sunshine. For example, अभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, एक वक्त आएगा जब हम क्वालिफाई कर लेंगे, और उस वक्त everyone will be like impressed with us, everyone will be following us, पैसे वैसे अच्छे होंगे, थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी करियर में. So right now is the time to struggle, but that point of time it will be time to bask in the glory of our hard work, क्योंकि हम लोगों ने इतना काम कर लिया होगा तो हम लोग उसको enjoy कर पाएंगे. Beneficiaries. Who are the beneficiaries? Charlie. Investigators. How can the investigators be benefiting out of it? Delta. Delta it is. Recipients. After that we have buoyant. As we discussed, buoyant is something that has the ability to float. Cheerful. Which one is that? Okay, D. Aarti कह रही हैं जी D. So इसमें tending to float. D is the correct answer. Yes. Browse. To search something. Well, what's the meaning? Alpha is good. Look around casually. Breach.
What is the meaning of breach? Gap is good, sir. Gap is good. Whoa, felt like an earthquake. Breach, sir. A, B, C, or D? Go against. Go against is good. For example, in the legal matters, we have promised to do something. For example, STT and you have entered into a contract. You have agreed to pay the fee. We have agreed to pay the facilities or the services that we have, right? अगर हम अपनी सर्विसेज देने से इनकार करते हैं या आप अपनी फ़ी पे करने से इनकार करते हो तो वी आर बोथ काइंड ऑफ डिसएग्रीइंग और गोइंग अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? दैट इज़ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. After that, we have bonanza. Bonanza, a sudden happening that brings good fortune, is good, Aarti. Bona fide or a bona fide. Yes. Bona fide is genuine, alpha, yes. And then we have obscure, which we will talk in O series. Blunder. That was a blunder. An O series word coming in B series. None? Beta. Picture oneself. Nope. Utter impulsively, sir. Utter impulsively. मतलब बगैर सोचे समझे कोई बात करते थे ना, बाद में हम बोलते हैं अरे ये क्या बोल दिया, राइट? बिलीव मी, देयर वाज अ सिचुएशन जब एक बंदा था, उसके थोड़े से बेचारे के बाल जा रहे थे और उसके सामने मतलब मेरे एक दोस्त ने मुहावरा यूज़ कर दिया था कि अल्लाह गज्जे को नाखून इस वजह से नहीं देता कि यू नो समथिंग लाइक दैट. सो उस वक्त तो उसने बोल दिया, लेकिन बाद में उसको बड़ा ख्याल है कि यार ये मैंने कहा किसके सामने. दिस इज़ लाइक अ ब्लंडर. आप बगैर सोचे समझे अटर कर देते हो बात, अटर इम्पल्सिवली, गुस्से में बोल देते हो बात. ब्लिट्स्ड. ब्लिट्स क्या चीज़ है जी? Delta is good. A swift military offensive with intensive aerial bombardment. Blitz again. Alpha, bombardment. And now we have bestow. Allah has bestowed many things to us, and we should be thankful about that. We should be grateful about that. Present is good. Present is the right answer. Benevolent. That's kindly. Do you think human nature is benevolent or not? Or are we malevolent? Yes to what? Malevolent or benevolent? Benevolent. Malevolent is the opposite of that. Candor, C series. अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर? हम घर से याद करके आएंगे ये वाली सीरीज़. कौन सी सीरीज़ है सर? दिस इज़ ICAP vocabulary. आप अभी कर रहे थे B सीरीज़, अब आपने करके आनी है A सीरीज़. A drawback is this, that it has a lot of words. A bet is to support something. A betters हम legal terms में यूज़ करते हैं सर उस बंदे को जो किसी बुरे काम में किसी को सपोर्ट करता है, किसी क्राइम में सपोर्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है जिसने बैंक लूटा और एक बंदा है जिसने गाड़ी चला के उनको वहाँ से निकाला, तो ही इज़ एन equal party to that crime, right? So aider and abettor. Abeyance is the suspension of law. Arena is a place where we can show our talent. हमारे पास Colosseum is a very good example of that. Colosseum is in Rome, Italy, जहाँ पे gladiators लड़ा करते थे. Abject is poor, miserable, without money. So Pakistan is all of that. Ascent is to increase, climb. Why are we doing chartered accountancy? Because we want to ascend in the social and financial ladder, right?
Accolade is awards, certificates, degrees, or anything good that we have achieved. Assessment is evaluation. Audit, accord is an agreement to agree with someone. Adamant is someone who's very rigid. You know, I'm adamant about my policies. I will not change it. FPSC is one of the most adamant bodies of Pakistan. Atrocity is zulm, something that is happening in Syria, something that is happening in Kashmir. Adept hota ji, expert aadmi. I think I am an adept person of languages. Sir Tariq is an adept person for taxation and legal matters, right? वैसे वो काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी जो सबसे ज़्यादा नीश है वो टैक्स उनका डेवलप हुआ है, राइट? Audit is again, audit and accolade can be together. Adhere is to follow. We should adhere the principles of Islam or whatever religion we follow, right? Or we should adhere the principle of humanity if we don't follow any religion, right? Augment is increase, adjuvant is helpful, supportive. So there is someone who's always helpful and supportive. That's why we become something. Admonish is to criticize. Adolescent, aap hain ji. Adolescent is youthful, young, and adolescence uski noun hoti hai, yani youth. Admonition is the criticism. See, admonish is the verb and admonition is the noun, so same word, repeated twice with different part of speech. Autocratic is someone who's like, you know, my way or the highway, who rules with an iron fist, who says that if you do not follow me, I will change something. You know, take the road, Jack, if you don't follow me. Autonomous is independent, and autonomy is the noun of that same word, autonomy, independence and independent. तो अब इसको यूँ समझो कि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, that is autonomous, और autonomy, और हम आज़ाद हुए थे 1947 में, we became autonomous, right? So आज़ाद versus आज़ादी, खुद मुख्तार versus खुद मुख्तारी. Adore is a higher degree of love, right? We love many people, but we adore one specific person. मतलब जैसे आप अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं ना, वैसे आप शायद किसी और से ना कर पाते हैं, right? We adore that person. Avidity is keenness, the desire, the passion, the bhook, the hunger, the thirst to become something, to do something, to achieve something. कैसा? यार ए सीरीज पूरी करेंगे एक दिन में, यस, आज नहीं करेंगे, कल का पूरा टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई थिंक फॉर दैट इट मेक्स सेंस. क्या ख्याल है? 24 घंटे, 48 घंटे, राइट? चला. उसके बाद अच्छा, दिस ऑल्सो गोज फॉर कि अगर कोई लिस्ट छोटी आती है वो भी हम एक ही दिन में एक ही करेंगे, राइट? अच्छा जी, अडल्टरेट कहाँ थे हम? Avidity is the passion to become something, passion to get someone. You know, I would say avidity is like, you know, junoon to get something, right? Not like that in a positive way. You know, junoon इश्क के 7 stages में से एक छठा स्टेज होता है, जहाँ पे आपको बस और कुछ नहीं दिखता, फिर आपको ये दिखना शुरू होता है कि जी बस वही है और वही है, right? मतलब होता है ना, मेरे टीचर्स एग्जाम्पल दिया करते थे कि यार टांगे को ना, टांगा देखा, उसके घोड़े को ना हम वो लगाते हैं ताकि वो और कुछ नहीं दे सके, वो सिर्फ रास्ते पे फोकस करे. अगर वो उसके बगैर भी देख सके और रास्ते को फोकस कर सके और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर जा सके, दैट इज़ कॉल्ड योर एबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड योर पैशन. जब आपको और कुछ ना दिखे, फिर सिर्फ आपका मकसद दिखे, राइट? ओके. Then we have avidity. Adroit is an expert. Adept के साथ इसको connect कर लेंगे. Akin is similar. My situation is akin to yours, or the financial situation of Pakistan is akin to that of Sri Lanka. Same हालात है ना हमारे. Okay, aggravate is to make something worse, right? And mitigate is to make something better, right? For example, आपने बोला जी आप अपने अब्बा से डांट खा रहे हो और अचानक से बीच में कोई बोल देगा ये तो है ही ऐसा. So this is not making things better. This is actually making things worse, right? एक तरफ से हमारे ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ऊपर से हमारे पास इंडिया बोल देता है कि जी ये तो दहशतगर्द भी हैं. Again making things worse.
अफ्लुएंट इज समवन हुज रिच पावरफुल, जिसकी बात सुनी जाए, जिसकी बात को तरजीह दी जाए. मतलब फॉर एग्जांपल China, Pakistan and USA, they want to say something in the international sector, right, on the international politics. Who do you think will be listened to? अब China, क्योंकि China has beaten that, like economically they have gone bigger. लेकिन China का भी सेब आ गया. US तो है ही है, China भी. किसकी नहीं सुनी जाएगी? पाकिस्तान फिलहाल. Okay, affix is to attach. एंड इट मेक्स टोटल सेंस यार. जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको ग्लोबल रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं. अमीर लोगों के वैसे ही बड़े सारे दोस्त होते हैं, अमीर मुल्कों के वैसे ही बड़े दोस्त होते हैं. अफिक्स इज़ टू अटैच. फॉर एग्जांपल क्या अटैच करते हैं हम लोग? समटाइम्स व्हेन वी सेंड अ लेटर वी नीड टू अटैच सम पोस्ट कार्ड्स और वो टिकट्स टू दैट, राइट, स्टैम्प्स टू दैट. या फिर हमें वो भेजे थे तुम लोगों ने इंटरमीडिएट में, लिफाफे कुछ भेजे होंगे आपने इंटर बोर्ड को, उसमें सारी वो चीज़ें डाल के. यूनिवर्सिटी में जाओगे वो भी खुद करोगे. तो वो क्या करते हैं, फिर हम एक्सपेंसिव वाले थोड़े से एनवेलप ले लेते हैं कि यार इस पर सब कुछ लगा हुआ होता है. अच्छा, और ज़्यादा जब और बड़े होंगे तो फिर हमें TCS से चीज़ें भेजनी होंगी, DHL से चीज़ें भेजनी होंगी. तो वो क्या करते हैं, उसको उस पैकिंग के प्रोसेस को देखिएगा, उसके ऊपर बहुत सारी स्टैम्प्स लगाते हैं पहले, एंड देन दे पैक इट. सो दे अफिक्स समथिंग ऑन दैट. Adultery is to communicate. Adultery क्राइम होता है सर, जिसको हम ज़िना कहते हैं उर्दू में. And this is one of the grave sins, one of the गुनाह कबीरा, I believe, right? So adulterate का मतलब होता है contaminate कर देना किसी चीज़ को. तो अगर हम ऐसे कोई sin commit कर लेते हैं, उसके बाद हमारा faith kind of becomes adulterated, it becomes impure, and then we have to make it pure. Affix is to attach, adulterate. Amicable is friendly. Alter is to change. We get our bikes altered. We get our furniture altered. Altercation is a phada. Altercation is a dispute that is usually settled outside court, but हम इसको लेके जा सकते हैं आगे भी. Archaeology is a science of old things, a study of ancient matters. Movies देखते हो? एक कैरेक्टर थे जिनका नाम था इंडियाना जोन्स. देखी कभी? तो ये इंडियाना जोन्स जो हैं, ये सारी की सारी इनकी जो मूवीज़ हैं, ये पुरानी चीज़ों के ऊपर ही, मतलब कभी ये कोई चीज़ खोद रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ खोद रहे होते हैं. यू कैन रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एज वेल, राइट. आर्कियोलॉजी के बाद है जी आर्बिट्ररी, रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल. कोई काम हम बगैर अपनी मतलब किसी रेगुलर रूल के इरेगुलरली कर लें, बिल्कुल सही है. आर्बिटर होता है जी जज, एनी थर्ड पार्टी हु हैज़ एन इन्फ्लुएंस टू सेटल द मैटर्स, राइट. अगेन वो बंदा अमीर और असर वाला होना चाहिए, अफ्लुएंट होना चाहिए, अदरवाइज उसकी कोई नहीं सुनता, राइट. एम्बुश क्या होता है जी? एम्बुश इज अ सरप्राइज अटैक, व्हेन यू वेट इन हाइडिंग फॉर समवन टू कम एंड देन यू नो यस. सो आई बिलीव ये जो हम तो मतलब पढ़ने वाले लोग फोकस है अपनी करियर पे, अपनी लाइफ पे. वो एक होता है ना लॉर्ड जो गली के कोने पे बैठी हुई होती है, वो वाली, मतलब एक लड़कों में वो कैटेगरी भी होती है, गली के कोने पे बैठे हुए आते जाते सबको ताड़ रहे हैं. आई बिलीव दैट दे आर वेटिंग इन एम्बुश फॉर द वुमेन, फॉर द मैन, फॉर द बॉयज, फॉर द गर्ल्स, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. वो आते जाते ना सबको तंग कर रहे हो. सो दे आर वेटिंग इन हाइडिंग टू अटैक, राइट. सो उनसे ज़रा सर बच के, ठीक है जी. उसके बाद है क्या? एम्बुश आ गया जी. एम्बुश के बाद है, किधर चले गए हम? अप्रोप्रिएट. देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम टू डू समथिंग. हर सोने का एक वक्त है और काम करने का भी एक वक्त है. जिस वक्त सोना है उस वक्त काम नहीं करना चाहिए, जिस वक्त काम करना है उस वक्त सोना नहीं चाहिए. मतलब दीज ईयर्स दैट यू हैव राइट नाउ, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर स्ट्रगलिंग, फॉर गेटिंग समथिंग. क्योंकि 45 के बाद आती है पिल्स वाला टाइम, है ना. 45 के बाद आप शुगर की पिल ले रहे होते हो, ब्लड प्रेशर की पिल्स ले रहे होते हो, फिर काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता. ओके, देन वी हैव व्हाट? वी हैव एम्बिगुअस नहीं, अपराइज. अपराइज इज टू इन्फॉर्म, टेल. एम्बिगुअस इज समथिंग विच इज़ अनक्लियर, काइंड ऑफ शेडी. यार ये जाके वो कर लेना, क्या जाके क्या करना है, कहाँ जाके क्या करना है, कुछ पता नहीं है. एप्रीहेंड इज टू अरेस्ट.
अब पोर्शन उसमें छुपा हुआ सर. पोर्शन मीन्स टू ब्रेक इनटू पीसेस, एंड एनार्की इज कंप्लीट लॉलेसनेस. Benazir Bhutto died. Everywhere there was anarchy. No law, nothing to be followed. कोविड आया, शुरू में लोग इतने परेशान हो गए, anarchy, and then we got to understand what this problem was. Amplify is to boost, increase something. Yes. Animation, usually लोग कहते हैं cartoon making को, लेकिन animation is actually liveliness as well. जिंदगी is animation. And amnesty is an official pardon. एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो काफ़ी ख़िलाफ़ थी किसके? कैपिटल पनिशमेंट के. कैपिटल पनिशमेंट इज सज़ाए मौत, राइट. उनके अगेंस्ट थे, काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे हम पे. तो अब हो रही है कैपिटल पनिशमेंट, अब हो रही है, ठीक है. कम, अभी भी कम है. रेस्टोरेटिव जस्टिस एंड ऑल, है ना. चलें सर, अभी 6. ओके, अब क्या करना है सर हमने? आज हमारे पास इसके बाद हमने करनी है, ये आपको इंशाल्लाह आज लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इसको याद करना है सर. राइटिंग में हमारे पास होता है कैसे, एक होता है लेटर, एंड देन वी हैव अ रिपोर्ट विच इज़ आस्क्ड इक्वली, एंड मेमो. Sir, we have 2 basic questions. Either we can start with this, or we can start with the essay. Which one do you want to start first? My vote goes to essay. What about you? And online students? Essay or the other things? Essay, sir. Let's go with essay. Thank you. पता है क्यों? क्योंकि essay जो है उससे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए. तो लेटर आपका सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना. ओके, सो ऐसे हमारा जी, वी हैव एन ऐसे ऑफ 150 वर्ड्स फॉर द बॉडी. वी नीड टू राइट एन इंट्रो, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू राइट अ बॉडी पैराग्राफ. एंड इंट्रो पे वी हैव नो लिमिट ऑफ वर्ड्स, and here we need to plan or plot the whole essay, right? Plan or plot the essay, yeah. Okay, in the body what we need to do is we need to write 150 words. अच्छा, अब कहने को इंट्रो में लिमिट नहीं है, लेकिन अगर बॉडी पूरी 150 की लिख रहे हो तो यार इंट्रो 150 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, राइट. इंट्रो कहाँ लैंड करना चाहिए? बोले कम होना चाहिए. सर बॉडी में हम लिखते हैं 3 पैराग्राफ्स. सो अगर 3 पैराग्राफ्स को 150 में बांटा हुआ है तो इंट्रो कितना होना चाहिए? आई वुड से इंट्रो शुड बी समवेयर अराउंड 50 to 70 वर्ड्स, राइट, है ना. इसके बीच में कहीं होना चाहिए, और बाकी 150 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे. तो हमने क्या करना है सर, हमने एक सबसे पहले समझना है कि इंट्रो में कुछ पार्ट्स होते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस दैट फर्स्ट. सर हमारे पास क्या होता है, वी हैव, ओके, कम ऑन, ओके, वी हैव 3 पैराग्राफ्स लाइक सो, एंड वी हैव some paragraphs like this. Take a look. So सर एक हमारे पास होता है इंट्रो पैराग्राफ, उसके बाद हमारे पास होते हैं 3 बॉडी पैराग्राफ. सर दैट्स इट, दैट्स द होल ordeal of the essay, right? Conclusion is not required. दे दें वर्ड्स बच जाए तो दे दें, लेकिन टेक्निकली वो कंक्लूजन नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ आपसे सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है कि आप अपनी चीज़ को कैसे साबित कर रहे हो, राइट. तो इंट्रो में हमें क्या क्या चाहिए होता है सर? इंट्रो में हमें जो पहली चीज़ चाहिए होती है वो है एक हुक. नाउ व्हाट इज़ अ हुक? हुक इज़ बेसिकली एनी क्रिएटिव, क्लेवर, इंटरेस्टिंग वे थ्रू विच यू कैन स्टार्ट योर एसे, ताकि आपकी बात को सुना जाए. क्योंकि कन्वेंशनल तरीका होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, ही हैड 3 daughters एंड वन ऑफ द daughters वाज दिस एंड दैट. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल एंड वेरी कन्वेंशनल मेथड.
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सर कुछ इस तरह से लिखना है कि वो पहली लाइन में ही बोर नहीं हो जाए, बल्कि वो पहली लाइन में सुने और आगे आपके ऐसे को पढ़ने पर मजबूर हो जाए. लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट. एक डायरेक्टर हैं इंडिया में, बहुत अच्छा काम करते हैं सर, उनका नाम है राजकुमार हिरानी. लेट मी शो यू. सर राजकुमार हिरानी ने जो है वो कुमार हिरानी थे. यस हिरानी. इन्होंने दो बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बनाई एंड दिस ही फॉलोज दिस पैटर्न वेरी नाइसली. सर इनकी पहली मूवी थी जो मतलब जिसने थोड़ा सा असर किया, दैट वाज मुन्ना भाई MBBS. डू यू रिमेंबर दैट? सर इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी, आई बिलीव एवरीवन हैज सीन दिस मूवी. तो मुन्ना भाई की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बंदा पार्क में जॉगिंग कर रहा और उसके पीछे एक बंदा लगता और वो थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि उनको शक हो जाता है कि जी कुछ हो रहा है. एंड देन दे कीप इंक्रीजिंग देयर स्पीड एंड अल्टीमेटली वो गोलियां चलाने लग जाते हैं और वो भागते भागते एक संजय दत्त के पास आते हैं. ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर एंड देन ही टेक्स हिम टू हिज प्लेस और पता चलता है कि जहाँ से वो छुपते छुपाते आ रहा था वो वहीं पे आ गया. एंड देन एक ख़त आता, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी आ रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर दैट स्टोरी. फिर वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि जी बाबूजी एक बंदा है और संजय दत्त जो है वो भाग के आए थे कुछ साल पहले गांव और फिर यहाँ ही. तो पॉइंट इज डज ही स्टार्ट with once upon a time there was a Murli Prasad Sharma who left his college, who ran away from his school. Yeah, he started from the middle. He started from the present, sir. Yes? क्योंकि उन्होंने आज की कहानी दिखाई कि आज भाई गुंडा और गुंडा बन के उसने बंदा कैप्चर किया है, बंदा किडनैप किया एंड देन ही गोज बैक एंड देन ही गोज टेक्स द स्टोरी इन रिवर्स. सो एक और एग्जांपल, आपने 3 इडियट्स हमने देखी होगी, राइट. सो 3 इडियट्स में क्या होता है सर? 3 इडियट्स में एक प्लेन दिखाते हैं वो सबसे पहले, अंदर एक बंदा बैठा हुआ है और उसको फ़ोन आता है कि जी राजू मिल गया, रैंचो मिल गया, सर रैंचो मिल गया. एंड देन ही गोज, अच्छा रैंचो मिल गया. वो वहीं एक्टिंग करता है और हार्ट अटैक एक पोस्ट वो पूरा जहाज़ को लैंड करवाता है नीचे इमरजेंसी है. फिर पता चलता है कि जी रैंचो कौन है. सो वो जो सीन है ना शुरू का, वो इतना अच्छा उन्होंने डाला. दैट सीन इज़ द हुक. दैट सीन मेक्स यू लिसन, मेक्स यू वॉच द होल मूवी कि यार आगे क्या होगा. वो जो टोज है ना आपको अपने टोज पे रखता है कि यार अब आगे क्या होगा. दैट इज़ योर हुक, सर, राइट. सो आपने जब इसको राइटिंग में कन्वर्ट करना है तो आपने हुक कैसी लिखनी है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही हैड 3 daughters. या डू नॉट टर्न अराउंड, इट्स राइट बिहाइंड यू. व्हिच वन इज अ बेटर अप्रोच? फर्स्ट और सेकेंड? वंस अपॉन अ टाइम or do not turn around, do not look back, it's right behind you. Which one is a better approach? Do not turn back, yeah, do not look back, it's right behind you. तो हुक आपने ऐसी रखनी है. एक हम क्लास पूरी हुक के ऊपर अरेंज करेंगे कि हुक कैसे बना सकते हैं. सर इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट. सर थीसिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली फॉर दिस मॉडल. थीसिस स्टेटमेंट एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है. थीसिस स्टेटमेंट एक पूरा पेज भी हो सकता है. इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं रिसर्च पेपर्स में. लेकिन आपके लिए थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जिसमें 3 पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3. सर ये जो थीसिस स्टेटमेंट में 3 पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो आपको दिखेंगे कहाँ पर? इधर. वो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1. सर ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको हमने एक्सप्लेन करना. फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि STT एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, राइट. हमने कोई भी 3 बातें बता दी कि जी STT डिजिटाइजेशन बहुत अच्छी करता है. एक हमने दूसरी बात बता दी कि जी STT जो है उनका एक पोर्टल भी है और वो पोर्टल पे सारी चीज़ें शेयर करते हैं और STT की फैकल्टी बहुत अच्छी है. इस तरह से हमने 3 बातें बता दी. अच्छा हमने पहला पॉइंट क्या बताया? डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी. हमने कहा जी यहाँ पे हमने पहला पॉइंट रखा टेक्नोलॉजी. पॉइंट नंबर 1 विल बी रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. और हमने अब यहाँ पे इसको एक सेंटेंस में खोलना है. सर उस सेंटेंस को हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, राइट. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है जी? टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट एक्सप्लेन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल. अच्छा अब आपने बोल दिया कि जी STT बहुत अच्छा है, या पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, या कवा सफ़ेद होता है, कुछ भी आप एक बात बोल दी.
सर जब आपने वो बात बोली तो एक सिंपल सा सवाल, क्या आप कोई नोबेल प्राइज़ जीते हुए इंसान हैं? नहीं। क्या आप कोई नबी पैगंबर हैं खुदा न खास्ता? नहीं। आर यू अ सेंट ऑफ सम सोर्ट? आप कोई वली अल्लाह है? नहीं। आप कोई पॉलिटिकल ग्लोबल लीडर हैं? आप बान की मून हैं या आप एंटोनियो गुतरेस हैं? नहीं है सर। तो आप इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम आपकी बात माने तो माने क्यों? राइट? So how will you make them realize that that's yes, whatever I'm saying, it has merit, it has value? आप उनको दोगे evidences, specific evidences related to your point. फॉर एग्जाम्पल आप बताओगे जी STT की अगर बात करें तो देखें सर, एक मॉनिटर यहाँ लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, लैपटॉप पे पढ़ाते हैं भाई, टेबल वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड तो है ही नहीं, राइट? सर दूसरा अगर आप बोलते हो जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे कि जी पाकिस्तान वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान में सोना है और यहाँ के लोगों का कल्चर और ये और वो, उसके स्पेसिफिक एविडेंसेस आपने देना शुरू कर दिए। आपने कहा जी मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप अपने बारे में लिखें, आप अपने बारे में बोलेंगे जी मैं तो अब्दुल बारी हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और दूध भी पीता हूँ, है ना? व्हाटएवर यू वांट टू से। The point is, whatever you're claiming, it has to be backed up with some evidences. Otherwise, वो ऐसी बात है, हवा में बात है, right? And this recipe will be repeated 3 times. You will come here and you will say topic sentence number 2. You will say topic sentence number 2 and you will give specific evidences for that. No. There are no headings in essays. Okay? यहाँ तक सही? तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में फिर से आएंगे सर, एक टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद उसके स्पेसिफिक एविडेंसेस देंगे। तो ये जो भी जो कुछ लिखा हुआ है सर, इसकी एक सेपरेट क्लास होगी हमारे पास। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। I want you to take a look at this one. सर ये हमने बनाने की कोशिश की, देखें, और ये भी एक ऐसे देखेंगे उसमें आपने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ये वाली सर, ठीक है जी। दिस इज़ योर essay, whole and soul of the essay. Can you see it? सर ओपनिंग रिमार्क्स, जिसको मैंने भी क्या बोला था, हुक का था, उसके बाद आपने देनी है थीसिस स्टेटमेंट, और इसी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपका प्लान ऑफ डेवलपमेंट होगा। आप वो 3 पॉइंट्स यहीं पे बता दोगे जो आप आगे चल के एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, सही है? व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट प्रोफेशन? CA ऑब्वियसली। तो मैं CA में आया क्योंकि एक है फ्यूचर अच्छा है, दूसरा ठीक है, लेकिन वही तो उस सेटिस्फाइड हैं इसी वजह से तो ऐसे लिख रहे हैं ना ये वाला। क्या ये आपको फ्यूचर मॉनेटरी बेनिफिट्स देगा, पैसे वैसे देगा? ये आगे सर माशरे में इज्जत देगा? कोई बोलेगा CA जा रहा है यार वो देखो, राइट? सो 3 बातें हमने की। पहली क्या, एक तो फ्यूचर, मुझे डिपेंडेंस है इसके ऊपर, मेरी जॉब नहीं छिनेगी, अगर छिनेगी भी ना तो मैं कुछ कर लूँगा अपनी लाइफ के साथ, राइट? सर मुझे पैसे अच्छे मिल जाएंगे और मेरी सोसाइटी में इज्जत होगी। अच्छा, अब ये हमने ये बताई, ये जो अभी सेंटेंस हमने बोला ना, मैं CA कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे और मुझे सोशल बेनिफिट्स होंगे। ये मैंने बताया 3 बातें। ये सेंटेंस को बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, राइट? अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो पहला आपने क्या खोला जी, मुझे फ्यूचर में रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। कैसे नज़र नहीं आ रहा? ये एक्सप्लेन करेंगे सर, ये आपके एविडेंसेस हो जाएंगे, बताओ ना। सही है, डिमांड हमेशा बनी रहेगी क्योंकि है ही बहुत थोड़े से। क्या आप बोल सकते हो कि हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट की ज़रूरत तो पड़ती है, राइट? भले वो नासा का ही स्पेस मिशन ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी एक कॉमर्स एंड अकाउंट, पैसा तो वहाँ पे भी ना सर, तो जहाँ पैसा है वहाँ अकाउंटेंट है, राइट?
सर दूसरे पैराग्राफ में आप बोलेंगे जी, फिर से आएंगे बोलेंगे इस प्रोफेशन के मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। कैसे? अच्छा, दूसरा इसका मतलब मुझे जो समझ आता है, एक डॉक्टर को शायद पता नहीं हो कि उसके पास जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अब पता होगा लेकिन इतना अच्छा पता नहीं होगा, इतनी डिटेल में नहीं घुसे हम लोग। वो ज़्यादा क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, कमेटी शमेटी डाल लेंगे, गोल्ड लेके रख लेंगे, लेकिन उसके बाद वो जो फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, जो आपके कॉल ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी में डालना है या म्यूचुअल फंड में बनाना है, ये उनको नहीं पता होगा, राइट। तो आपको ना सिर्फ अच्छे पैसे मिलेंगे एज अ सैलरी, बट उस सैलरी को कहाँ यूटिलाइज करना है उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी मिल जाएगी। यस और नो? सर इसके बाद तीसरा ऑप्शन, सर इज़्ज़त होगी माशरे में। साबित करें कैसे? एक, दो, सर जब मैं सीए क्वालिफाई कर चुका हूँगा तो मैं 3-4 मुल्क घूम चुका हूँगा, राइट। मेरे पास ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास पैसे वैसे होंगे, मेरी बात को लोग समझेंगे कि यार ये एक लर्नड है, वेल ट्रैवल्ड बंदा है। यस, ऐसी ही ना? तो इन सब बातों से मैं अपने केस को साबित कर पाऊँगा, राइट। तो यही करना है सर। अभी एक सैम्पल देखते हैं और इसमें आपने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि कौन सा है टॉपिक सेंटेंस, कौन सा है थीसिस स्टेटमेंट, कौन सा है आपका स्टार्टिंग हुक किधर है। सर ये है हमारा एक ऐसे, ये मैंने नहीं लिखा भाई, ये डायन वुड्स नाम की एक राइटर ने लिखा हुआ, ये रहा, ठीक है। और वो कहती हैं कुछ ये, जी सर पढ़ेंगे यहाँ से एक एक पैराग्राफ। पहला आप सर, टॉपिक क्या? मूवी देखने के मसाइल, मूवी देखने जाने के, सिनेमा जाने के मसले, राइट। सिनेमा जाने की टेंशन्स। सर नुकसानात, यहाँ से पढ़ रहे हैं सर आप। सर ज़ोर से पढ़ रहे हैं ना सबके लिए। हाँ चले पहले मैं पढ़ लूँ। सर आई एम अ मूवी फैनेटिक, माई फ्रेंड्स काउंट ऑन मी टू नो मूवी ट्रिविया, हु वॉज द पिगटेल लिटिल गर्ल इन ईटी। ईटी क्या है जी? ईटी एक मूवी थी जिसके ऊपर हमारी एक और मूवी बनी थी, वो देखिए कोई मिल गया, देखिए ऋतिक वाली, माँ मेरी शक्तियों का, वो वाला। हाँ वही वाला, वही वाला, वो इसकी कॉपी थी सर। ये मूवी थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एंड इट वाज अ मूवी, ये सर स्टीवन स्पीलबर्ग की एक बहुत अच्छी मूवी थी, राइट। तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसमें क्या बनाया था यार, ये इस लड़की की बात कर रही है वो, और क्यों कह रही हैं वो भी देखिएगा। एवरी मूवी ट्रिविया, हु वाज द पिगटेल लिटिल गर्ल इन ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ड्रू बैरीमोर। वो कहती है जी इस लड़की का नाम ड्रू बैरीमोर है, जो खुद आगे चल के बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी है। एंड टू रिमेंबर एवरी बिग ऑस्कर अवॉर्डेड सिंस आई वाज इन ग्रेड स्कूल, बेस्ट पिक्चर 1944 फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप देखी आप में से किसी ने? नहीं देखी? लाल सिंह चड्ढा देखी? वो इसकी कॉपी है सर, राइट। ये देख लें, ये सर फॉरेस्ट गंप 8.8, इट्स लाइक अ मैसिव मैसिव मूवी। आप समझेंगे आमिर खान बैठे हैं, ये करीना कपूर बैठी हुई, सेम मूवी है, इन्होंने सीन टू सीन कॉपी कर दी है सर, सही है। अच्छा जी, तो अब वो फिर से इसको देखते हैं। भाई मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, आई एम अ फैनेटिक, आई एम लाइक क्रेजी अबाउट मूवीज़। मेरे दोस्त मुझ पे काउंट करते हैं, दे डिपेंड ऑन मी दैट आई वुड नो एवरी डिटेल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर डिटेल उठा के ये इससे कॉपी हुआ, ये इससे कॉपी हुआ। हु वॉज द पिगटेल लिटिल गर्ल इन ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ड्रू बैरीमोर। वो जो चोटियों वाली लड़की थी वो कौन थी? ड्रू बैरीमोर थी। एंड उनको पता है कि मुझे ये भी पता होगा कि कौन सा ऑस्कर किस साल किस मूवी को मिला, राइट। मैं इतनी मूवी फ़ैन हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, डायन वुड्स कह रही हैं, राइट। और फिर उन्होंने एज एन एविडेंस बोला कि जी 1944 का जो ऑस्कर था वो गया था फॉरेस्ट गंप को। माई फ्रेंड्स दो हैव स्टॉप आस्किंग मी इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज़। मेरे दोस्तों ने पूछना छोड़ दिया है कि मैं मूवीज़ जाना चाहती हूँ या नहीं। वाइल आई लव मूवीज़ एज मच एज एवर, हालांकि मुझे मूवीज़ अभी भी बहुत पसंद है। द इनकन्वीनियंसेस ऑफ गोइंग आउट,
the temptations of the concession stand, and the behavior of some of the patterns are reasons for me to wait and rent the DVD. तो ऊपर उन्होंने इतनी कहानी सुनाई कि जी मूवीज़ बड़ा मज़ेदार होती हैं, मुझे मूवीज़ का बड़ा शौक़ है, मेरे दोस्त मुझ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं जो है वो मूवीज़ नहीं देखती हूँ अब, क्योंकि रास्ते में जाने के मसले बहुत ज़्यादा, उसके बाद वहाँ पे जाओ तो अनहेल्दी चीज़ें मिलती हैं, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बंदे का, और तीसरी बात उन्होंने बताया कि जी लोगों के रवैया अच्छा नहीं होता, लोग वहाँ पे आते हैं उनको तमीज़ नहीं है मूवी देखने की. सो शी गेव 3 reasons, which means that this sentence which has 3 statements, 3 reasons is the thesis statement. Sir. हो क्या थी, हो किए के टॉपिक है पाकिस्तान के मसाइल, और आप शुरू करें पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है ना. यू स्टार्टिंग विद अ कंप्लीट अपोजिट आइडिया. भाई बंदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना यार ये मसला है कि ये शराब बड़ी पीता है ना. तो आप अच्छाई बता रहे हो लेकिन शुरुआत करो बुराई से. यहाँ पे आप बुराई बता रहे हो लेकिन शुरुआत कर रहे हो अच्छाई से. दिस इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट टेक्निक. विल टॉक अबाउट दैट. थीसिस स्टेटमेंट समझ आई कहाँ पर है, किधर है वो? सर लिखें अपने पास, पढ़ के बता दें. सर आप लोग को थीसिस स्टेटमेंट समझ आई कहाँ पर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वाइल वी स्टार्ट. यस, वाइल से स्टार्ट है, बिल्कुल ठीक है. सर क्या मकसद होता है थीसिस स्टेटमेंट का? थीसिस स्टेटमेंट ये है सर कि ये आप पूरी बुक देखने की बजाय ना अगर एक सेंटेंस पढ़ लें इस बुक का, राइट, उस सेंटेंस को आप पढ़ लें, आप पूरी बुक देखने पे मजबूर हो जाओगे, आपको पूरी बुक का एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा. सिमिलरली अगर आप ट्रेलर बनाते हो किसी मूवी का, तो वो ट्रेलर में आप कोशिश करते हो कि सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स, अच्छे अच्छे सीन्स आ जाएं ताकि बंदा देखने पे मजबूर हो जाए. थीसिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो लाइक दैट. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको पूरे ऐसे की कहानी बता देता है. अभी क्या है सर, यानी यहीं से देख के मुझे पता चल गया कि अगले जो 3 पैराग्राफ्स आएंगे उसमें एक में इनकन्वीनियंसेस की बात होगी, एक में टेम्पटेशंस की बात होगी, और एक में बिहेवियर ऑफ द पीपल की बात होगी. डज दैट मेक सेंस? डज इट हैव अ प्लान ऑफ डेवलपमेंट नाउ? क्या एग्जामिनर को, क्या रीडर को, क्या राइटर को, दोनों को पता है कि बात किस बारे में होगी, है या नहीं? क्लियर है सर? देन हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट तैयार है. अब आप पढ़ें सर. तो ऊपर जो बात एक वर्ड में लिखी थी, इनकन्वीनियंसेस ऑफ गोइंग आउट, उसको हमने कन्वर्ट किया एक पूरे सेंटेंस में. उसको हमने दोबारा से बताया. क्यों दोबारा से बताया? क्योंकि हम यहाँ बताना चाहते हैं कि भाई ये वो पॉइंट है जिसको मैं इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा. पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी. तो ये पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी. ये पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट इनकन्वीनियंसेस. सर अच्छा, जो वर्ड आपके लिए नया हो प्लीज़ लिख लीजिएगा, उसको फिर बाद में हम पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे इसका. जी. अभी पढ़ लें फिर बताता हूँ. मार्क कर लिया मैंने. $11 seal themselves. It's okay. Sorry, मैं आ रहा हूँ आगे. Yes. रेजिनेट्स. अच्छा, रेजिनेट्स एक तरह की स्वीट होती है. अच्छा,
सर यहाँ समझाए टॉपिक सेंटेंस क्या है, टू बिगिन विद आई जस्ट डोंट एंजॉय द जनरल हासिल ऑफ द इवनिंग, यानी इसमें वो क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंशंस ऑफ गेटिंग टू द मूवी थिएटर। आप गए कभी सिनेमा में मूवी देखना? कभी नहीं। अवेश हैव यू, कौन सी लास्ट कौन सी देखी थी? कब देखी थी, कहाँ देखी थी? 2 years ago हैदराबाद हियर न्यू प्लेक्स, ये जौहर वाला, वो DHA वाला। चलो वहाँ कम रश कम होता है, लेकिन हम फिर भी ना उसको इस पैराग्राफ में ढालने की कोशिश करेंगे। एट्रियम देखा कभी? एट्रियम सिनेमा नहीं? चले लेट्स एट्रियम लोकेटेड है जी सदर में, और इसी वजह से शायद अवैस ने जो है ना वो पहले ही उसको अवॉइड किया क्योंकि वो सदर में है, राइट? सदर में ये सारे मसले मौजूद हैं, राइट? अच्छा, टू बिगिन विद आई जस्ट डोंट एंजॉय द जनरल हैसल ऑफ द इवनिंग, मुझे ये टेंशन पालना चाहती नहीं हूँ मैं, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। Since small local movie theaters is a thing of the past, I have to drive for 15 minutes. इनका घर है, अवेश का घर है गुलशन में, और ये मूवी देखने गए DHA में, तो कितने मिनट की ड्राइव हुई? 2 hours? नहीं, इतना लंबा 1 घंटा कर लेते हैं, चलो ट्रैफिक डाल के 1 घंटा कर लेते हैं, फिर भी वो बहुत है यार। हम डायरेक्ट जा रहे हैं ना, जस्ट टू मैच दिस, ठीक है? तो 1 घंटे की ड्राइव सर, मतलब ये कुर्बानी है यार बहुत बड़ी, राइट? तो 1 घंटा ड्राइव करना पड़ेगा, ये पहली टेंशन। और कराची के रोड पे, कराची की अनसर्टेनिटी के साथ, कराची के ट्रैफिक रूल्स के साथ, बीच में हो सकता है कोई पुलिस वाला मिल जाए, हो और नहीं तो वो फरिश्ते मिल जाए, निकालो भाई फ़ोन, राइट? वो इन अनऑफिशियल टैक्स सर कहते हैं ना, अनऑफिशियल टैक्स लेने आते हैं। ओके, उसके अलावा सर बीच में जो है वो पोल्यूशन है, गर्मी है, सारा कुछ है, पेट्रोल लग रहा है आपका, AC चल रहा है, तो ये टेंशन सर पहली। द पार्किंग लॉट इज़ ऑलवेज शेयर्ड विद सेवरल रेस्टोरेंट्स एंड ए सुपर मार्केट। अच्छा, उसके बाद जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वैले तो अब आ गया, कोई 10 साल पहले, उससे पहले वैले नहीं होते थे, जब कहीं ऐसे शायद उन्होंने लिखा हुआ। तो मुझे ना अपनी पार्किंग ढूंढने के लिए अगर मैं एट्रियम जाता हूँ तो पहले मुझे यहाँ वहाँ और पूरा ना चक्कर लगाना पड़ता, राइट? और अगर वो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास होटल अल हरमैन भी है, सामने KBC भी है, नीचे एक शॉपिंग मॉल भी है, तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग कामों के लिए वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। और जब पार्किंग ढूंढ रहे होते हैं तो वी हैव टू ड्राइव एट अ स्नेल स्पेस, हम बहुत स्लो एक स्नेल की स्पीड के साथ चल रहे होते हैं, एंड अनटिल आई स्पॉट अनदर ड्राइवर बैकिंग आउट, ठीक है जी? और तब मुझे सुकून मिलता है जब मुझे कोई और ड्राइवर निकलता है और फिर मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ। So that's the second problem. First problem is it is far away. Second, I do not get sufficient parking space, right? Then it is time to stand in an endless line. ठीक है जी? तो अगर मूवी अच्छी लगी हुई है और नहीं भी लगी हुई है, तो उसके बाद ना हम जाते हैं, वो एक गार्ड हमारा ना पूरा स्कैन करता है, राइट? दो इट इज़ फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन आप उसको एक अलग एंगल से देखो कि यार हम कोई टेररिस्ट लगते हैं शक्ल से यार, जो इतनी हमारी चेकिंग फ़ोन यहाँ और ये अच्छा, जब ये ओशन वहाँ गए थे, DHA गए थे, तो DHA वो पूरा जो ना सर, पूरा कोई 4th फ्लोर पे आपकी, 3rd फ्लोर पे आपका सिनेमा। सेम गोज़ फॉर एट्रियम, राइट? सेम गोज़ फॉर ओशन मॉल एज वेल, राइट? वो भी 3rd फ्लोर पर है, राइट? तो आपको ठीक ठाक वहाँ से भी चलना पड़ता है, जाना पड़ता है ऊपर। देन हर जगह पे एक लंबी लाइन होती है, एलिवेटर की लाइन, एस्केलेटर की लाइन, मूवी टिकट लेने की लाइन, तो तीसरा मसला लाइन्स आ गई। With a constant threat that the tickets for the show that I want will sell out. भाई जिस शो की, जिस टाइमिंग में टिकट मूवी मैं देखना चाह रहा हूँ, वो टिकट्स ही ख़त्म हो जाएंगी, वो शो स्टार्ट हो जाएगा, ये मसला आपको हमेशा लगा रहता है। इफ़ वी डू गेट द टिकट्स, अगर टिकट्स मिल भी जाएँ, द थिएटर विल बी सो क्राउडेड दैट आई वॉन्ट बी एबल टू सिट विद माई फ्रेंड्स। मतलब इतना रश होगा कि मुझे मतलब की जगह मिलेगी नहीं, ये बैठूंगा मैं एक यहाँ और एक वो बैठा होगा आखिरी कोने में कहीं, राइट? और वील हैव टू सिट इन अ फ्रंट रो गेपिंग एट अ जायंट स्क्रीन, या मुझे बिल्कुल फ्रंट रो की सीट्स मिलेंगी क्योंकि पीछे वाली सारी चली गई होंगी, और फिर मुझे स्क्रीन को यूँ आगे, इमेजिन द पेन। सर आई हैव टू शेल आउट अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम घर पे कंपैरिजन करते हैं, एक वाईफाई लेते हैं, वाईफाई का पर मंथ कितने का होता है रेंट? 3,000 में कर लेना, सही है सर? 3,000 में आप कितनी मूवीज़ देख सकते हो उसमें? जितना आप चाहो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, डाउनलोड करते जाओ, देखते जाओ, राइट? मूवी देखने जाते हो तो 3,000 रुपये में सिर्फ मिलती है एक टिकट, 3 बंदों की, 2 बंदों की। ऐट द पॉपकॉर्न वो मामला 5-6 हज़ार तक चला जाता है, राइट?
So she is talking about the expense of that as well, right? That entitles me to sit while my shoes seal themselves to a sticky floor coated with spilled soda, bubble gum and raisinets. और ये इतने पैसे दे के मुझे क्या राइट मिलता है कि मैं एक गंदी सी सीट पे बैठ सकूँ जहाँ पे लोग पहले से पॉपकॉर्न गिरा के गए हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड, लाइक इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने कहीं पर भी डिफ़िकल्टीज़ के अलावा कोई बात की नहीं, ओनली टॉक्ड अबाउट डिफ़िकल्टीज. सर इसके बाद पढ़े आप सर इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस. या जी. Equipped. With a movie screen and comfortable seat as I try to Persuade myself to just have a diet coke. The smell of fresh popcorns. dripping with butter. जूम करूं? कहाँ पर है? अच्छा आउट हो गया. अब देखो बेटा जी. Soon out of me, chocolate was the size of a small automobile, safe to jump into my hand. I just pulling out my filling as I chew enormous mouthfuls of milk. Till that, by the time I leave the theater, I feel disgusted with myself. All right. सर हम क्या कह रहे हैं? सेकेंड, द थिएटर ऑफर्स टेम्पटिंग स्नैक्स दैट आई रियली डोंट नीड. जो दूसरी बात है, थिएटर में जो खाने को चीज़ें मिलती हैं वो ऐसी अनहेल्दी, टेस्टी लेकिन अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ अस, आई हैव टू बैटल एन एक्सपेंडिंग वेस्ट लाइन. अगर हम ज़्यादा खाते तो क्या होता है? मोटे हो जाते हैं. सो बाकी लोगों की तरह मैं भी एक बढ़ती हुई कमर या बढ़ती हुई वेस्ट लाइन के साथ जो है ना वो लड़ रही हूँ लगातार. और ये लड़कियों के लिए तो ज़्यादा मसला होता है शायद, राइट? एट होम आई डू प्रिटी वेल बाय सिंपली नॉट बाइंग स्टफ दैट इज़ बैड फॉर मी. अगर मैं घर पे होती हूँ तो मैं वो चीज़ें देख लेती हूँ, वो चीज़ें खा लेती हूँ जो मेरे लिए अच्छी नहीं है. वो चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ सिंपली नॉट बाइंग. वो चीज़ें खरीदती नहीं हूँ जो मेरे लिए बुरी हैं. आई कैन मेक डू विद स्नैक्स लाइक सेलरी एंड कैरेट स्टिक्स. दोनों ही सब्जियाँ सर. सो मैं घर पे सेलरी खा लेती हूँ या कैरेट स्टिक्स खा लेती हूँ बिकॉज देर इज़ नो आइसक्रीम इन द फ्रीज़र, क्योंकि फ्रीज़र में आइसक्रीम है ही नहीं. अच्छी बात है. लेकिन जब मैं जाती हूँ मूवी थिएटर तो ये ऐसे ही जैसे मैं किसी 7-Eleven में चली गई. 7-Eleven क्या होता है? पेट्रोल पंप्स पे देखा है, टक शॉप्स होती हैं. उनमें टक शॉप्स के अंदर जाओ तो आपको मिलता है कोई अच्छी कोई खाने वाली चीज़, या चिप्स होते हैं, ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं ना, चिप्स, पॉपकॉर्न. सो सिनेमा जाना ऐसा ही है जैसे मैं किसी 7-Eleven पे चली गई हूँ जिसके अंदर एक दैट इज़ इक्विप्ड विद अ मूवी स्क्रीन एंड कंफर्टेबल सीट, जिसके अंदर मूवी स्क्रीन भी लगा दी है और कंफर्टेबल सीट्स भी लगा दी हैं. एज आई ट्राई टू परसुएड माई सेल्फ टू जस्ट हैव अ डाइट कोक, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि मैं डाइट कोक लूँ. द स्मेल ऑफ फ्रेश पॉपकॉर्न्स ड्रिपिंग विद बटर सून ओवरकम्स मी. वो जो पॉपकॉर्न्स की खुशबू आती है वो फ़ौरन से पहले मेरे ऊपर हावी हो जाती है. एंड चॉकलेट्स द साइज ऑफ स्मॉल ऑटोमोबाइल सीम्स टू जम्प इनटू माय हैंड. चॉकलेट बार्स लाइक बाउंटी ले लें आप, टोब्लेरोन ले लें, कैडबरी ले लें, कुछ भी ले लें, राइट? सो इतनी छोटी सी वो जो चॉकलेट बार्स होती हैं वो खुद ब खुद ऐसे छोटी गाड़ियों की तरह मेरे हाथों में जंप करके आ जाती हैं. इन्होंने जो टूल इस वक्त यूज़ किया वो पर्सोनिफिकेशन है, राइट? इन्होंने उस चीज़ के अंदर ये एबिलिटी डाल दी है कि वो आ जाए मेरे पास. सो दे सीम टू जंप इनटू माय हैंड्स.
आई रिस्क पुलिंग आउट माई फीलिंग्स, मैं अपनी जो दांतों की फीलिंग्स होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ निकाल लूँ, नहीं रिस्क होता है कि वो भी ना निकल आएंगे इस साथ में। एज आई चू इनॉर्मस माउथफुल ऑफ मिल्क डट्स, जैसे जैसे हमारे पास M&M's होते हैं ना, नहीं M&M's छोटी एक वो बाउंटी बंटी टाइप की चीज़ होती है, चॉकलेट्स होती है। सो एक रिस्क होता है हमेशा कि कहीं मेरे दांत ही ना निकल आए, मेरी फीलिंग्स ही ना निकल आए जब मैं ये चीज़ें खा रही होती हूँ। बाय द टाइम आई लीव द थिएटर आई फील डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ, और जब मैं इससे निकल के आती हूँ तो मुझे अपने आप से घिन आ रही होती है। सो इस पैराग्राफ में इन्होंने कोई इनकन्वीनियंस की बात की है, इन्होंने सिर्फ बात की है उसके अनहेल्दी खाने की। सो यानी जब हम पहले से प्लान कर लेते हैं कि यार इस पैराग्राफ में द फर्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट दिस एंड द सेकंड पॉइंट विल बी अबाउट दिस, हम लोग एक होता है ना कि कभी कभार हम लिखते लिखते घुस जाते हैं दूसरे पॉइंट्स में, तो वी कैन अवॉइड दैट हियर। यस, थर्ड पैराग्राफ एंड द बेस्ट वन सर, बोलो। Many of the other patterns are even more of a problem than the concession stand. Little kids dress up and down the Aisles. and usually in an English step. Teenagers try to impress their friends by taking back to the screen, whistling and making what they are considered to be hilarious noises. Adults act as if they were at home in their own living room. They comment loudly on the edge of the stars and reveal plot of twists that are supposed to be secret until the film ends. And people of all ages create distraction. They twinkle, candy, rats, Rappers. stick gums on their seats and drop popcorn tube on cups of crushed ice and soda on the floor. They also club and bug, Burp. bug, डकार मारते हैं, yes, स्क्वर्म एंडलेसली इन देयर सीट्स, बेचैनी से मचलते रहते हैं अपनी सीट्स में। find out of repeated tips to the restroom or concession stand and elbow me out of the arms on the armrest on either side of my seat. Alright, so many of the other patterns are even more of a problem than the concession stand. जो लोग हैं ना सर, वो उस concession stand से, वो खाने की जगह से, उस कैफेटेरिया से भी ज़्यादा मसला है। सबसे पहले उन्होंने बात की जी लिटिल किड्स रेस अप एंड डाउन, नीचे जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं यूजली इन गिगलिंग पैक्स, हंसते हैं, भागते हैं, डायलॉग समझ नहीं आते तो भाग रहे होते हैं उधर। Teenagers try to impress their friends by talking back to the screen, whistling and making what they consider to be hilarious noise. टीनेजर्स क्या करते हैं सर, वो चीखें मारते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं, वो जब स्पेशली कोई रोमांटिक सीन आता है, द हीरो एंड द हीरोइन दे ट्राई टू किस ईच अदर, तो पीछे से ये अबे छोड़ दे क्या कर रहा है, इस तरह की बातें हो रही होती है, राइट। अडल्ट्स क्या करते हैं सर, अडल्ट्स एक्ट एज इफ दे वर एट होम इन देयर ओन लिविंग रूम, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हुए हैं। They comment loudly on the ages of the stars and reveal plot twists that are supposed to be a secret until the film's end. वो क्या करते हैं सर, वो कमेंट करते हैं, जैसे सुल्तान जब आई थी सलमान खान वाली, तो एक आंटी बैठी हुई थी पीछे, वो कहती है देखो यार ये अनुष्का शर्मा इसकी बेटी की एज की है, उसके साथ ये हीरो आया हुआ है, इसको शर्म आनी चाहिए, है ना, इस तरह की बातें। फिर अवेंजर्स देखी, अवेंजर्स में एक बंदा ना मूवी शुरू होने से पहले ही अपने दोस्त को पीछे बता देता है कि यार ये जो कैप्टन अमेरिका है ना, ये एंड पे थोर का हथौड़ा उठाएगा, राइट। सो दे स्पॉइल द मूवी, सस्पेंस खराब कर देते हैं। तो they comment loudly on the ages of the stars and reveal plot twists that are supposed to be secret until the film's end. And people of all ages create distractions. हर तरह के लोग हर तरह की जो है ना डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं सर, फ़ोन बज रहे होते हैं बीच में, किसी की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, दे क्रिंकल कैंडी रैपर्स, stick gum to the seats and drop popcorn tubs or cups of crushed ice and soda on the floor.
किसी और को क्या कहना है यार, हम जब अपने बच्चे को लेके जाते हैं ना मूवी देखने तो वो भी इधर उधर घूम रहा होता है, राइट. दे ऑल्सो कफ एंड बर्प, खांसते हैं, डकार मारते हैं, अपनी सीट पे हिलते रहते हैं, बार बार वॉशरूम या सिनेमा वो कैफेटेरिया जाते हैं. एंड अल्टीमेटली कभी कभार ये भी होता है कि जैसे मैं एक आई एम अ बिग गाय, राइट, तो मैं अपनी एक सीट पे ये हाथ रख के मेरे लिए ना मुश्किल होता है, तो मैं किसी और की सीट पे जैसे ना कब्जा कर सकता हूँ. सो शी सेज कैसे लोग मेरे साथ करते हैं, राइट. सर एंड पे क्या होता है जी, कंक्लूजन आती है. After arriving home from the movies one night, I decided that I was not going to be a movie goer anymore. मैंने आइंदा से मूवी देखने सिनेमा जाना ही नहीं है. I was tired of the problems involved in getting to the theaters. ये याद है? ये लाइन हमने पहले भी देखी थी. Sorry for that. सर ये वाली लाइन को हमने पहले कहा था थीसिस स्टेटमेंट, हम उसी लाइन को रीफ्रेज कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस. लिख लो अपने पास, रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस. यानी इंट्रो में हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि हम क्या बताने वाले हैं. ऐसे ही ना, बॉडी में आके हम एक्चुअली बताएंगे कि भाई हम क्या बताने लगे, और कंक्लूजन में हम बताएंगे कि हमने क्या बताया था. रिपीट किया ना वही वाली बात. So after arriving home from the movies one night, I decided that I was not going to be a moviegoer anymore. I was tired of the problems involved in getting to the theater, resisting unhealthy snacks, and dealing with the patrons. फिर हम बताते हैं solution. The next day, I arranged to have a premium movie channel added to my cable TV service, and also got a Netflix membership. तो मैं ना अब सिनेमा जाकर ही मैं अपने घर में देखती हूँ. Netflix लगा लिया मैंने, प्राइम वीडियो भी ले लिया मैंने, सर केबल टीवी पे चैनल्स भी लगवा लिए हैं. अब मैं सिनेमा नहीं जाऊँगी. आई मे नाउ सी द मूवीज़ अ बिट लेटर देन दी अदर पीपल. शायद मैं मूवीज़ देर से देखूँ, बट आई विल बी मोर रिलैक्सड वॉचिंग बॉक्स ऑफिस हिट्स इन द कम्फर्ट ऑफ माई ओन लिविंग. लेकिन मैं ज़्यादा रिलैक्सड हूँ ये देखने अपनी मूवीज़ को अपने घर के कम्फर्ट लेवल पर. ऐसे समझ आया सर? कितने पॉइंट्स बताने होते हैं? 3. जो शुरू में एक लाइन हम बताते हैं जिसमें ये तीनों पॉइंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट के 3 पॉइंट को एक पैराग्राफ में खोलेंगे. उन पैराग्राफ को हम बोलते हैं सपोर्टिंग पैराग्राफ. सपोर्टिंग पैराग्राफ में 2 चीज़ें होनी चाहिए सर. कौन कौन सी? ये देखें. तो हम कितने सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिखेंगे? 3, राइट. और एक सपोर्टिंग पैराग्राफ में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक टॉपिक सेंटेंस और उसके एविडेंसेस. याद रहेगा? अगर ये याद है इतना जो हमने अभी ऐसे एक्सप्लेन किया है, तो ये कुछ एक्टिविटी है सर, ये ज़रा सॉल्व करना. सर इन द हैज़र्ड्स ऑफ मूवी गोइंग, व्हिच सेंटेंस और सेंटेंसेस आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन और इंटरेस्ट? Yes. In which sentence is the thesis statement presented? Yes. Last sentence भी आप कह सकते हो, right? Does the thesis include a plan of development? Yes, sir. था. Write the words in the thesis that announce the 3 major supporting points of the essay. अपने words में सर. अपने वर्ड्स में लिख लेंगे वाली बात जल्दी से. ये क्या?
ठीक है जी, क्या लिखा? First of all, if I was move it better, I would have to face the traffic issue, parking issue, etc. etc. सही And है, there would be more responsible that I can't see इतना सब that. कुछ लिखा है, ये बोल रहे हो, Both लिखा क्या वो बताओ. आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स वेरी गुड, बट द पेपर इज ऑफ राइटिंग, राइट? व्हाट हैव यू रिटन? traffic issue expensive and uncomfortable. बस सही, अभी एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन बाद में करना, राइट? ठीक है जी. सो ट्रैफिक इश्यूज, अनहेल्दी स्नैक्स एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, राइट? ठीक है जी. सपोर्टिंग पैराग्राफ्स आ गए. व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ? ये सर अपने वर्ड्स में लिख लें. ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में. पेपर में सिर्फ आपको लिखने को बोलेगा वो एक ऐसे, लेकिन मैं ही इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूँ कि आपको चीज़ें समझ आई हैं या नहीं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई एम, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड, राइट? लेट्स डू इट सर. ये लिखना, यू नीड टू मेक, आपने पढ़े ना 3 टॉपिक सेंटेंसेस, आप अपने टॉपिक सेंटेंस बनाओ. रिमेंबर दैट इट हैज टू बी अ टॉपिक सेंटेंस, इट नीड्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट यू आर ट्राइंग टू से. Done? Travel issues, it's just 2 words, it's not a sentence. You need to convert, this is a point. You need to convert that into a sentence now. So आप लिखेंगे, first of all, I do not like the travel issues that are involved in getting to this movie theater. तो ये point को टॉपिक सेंटेंस जब बनाओगे इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. रिमेंबर, इट्स नॉट अ टॉपिक पॉइंट, इट्स अ टॉपिक सेंटेंस, राइट? करें सर. सर देखें ना, मैं आपको ये रही सर आपकी थीसिस स्टेटमेंट, यही तो काम है अभी तक किया. ये तो आपका पहला पॉइंट है ना. इसी पॉइंट को उन्होंने एक टॉपिक सेंटेंस में कन्वर्ट किया था, वही आपसे करवा रहा हूँ. करें सर. जल्दी से कर लें, मैं तब तक एक कॉल कर लूँ. अस्सलाम वालेकुम. यू कॉल्ड? मैं हो रहा हूँ 4 बजे तक, मतलब 3:45. क्या क्या लिखा है? अच्छा, can't you text me? Okay, can't you text me? अच्छा चल, ओके, I'll be there. हाँ जी, done. Bist du fertig? The basic problem which made B to avoid. Okay, I think there's a autocorrect issue हुआ है कुछ. The basic problem that needs to be avoided while going to the cinema is the traffic issue which leads irritation before going there. ठीक है, which leads to irritation before going there. ठीक है, good attempt. जी सर. As I don't like to drive alone and suffer. दोबारा clearly. As I don't like to drive alone and suffer the problem of traffic and parking, so I have to. ठीक है,
सही है, अभी के लिए ओके है, अभी करो भाई, 2-4 गलतियाँ करो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन सर। फिर हमने दूसरा टॉपिक सेंटेंस लिखना है इसी तरह से, बल्कि उससे पहले हम ये करें कि इस टॉपिक को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनको हमने क्या कहा था, स्पेसिफिक एविडेंसेस। सर कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, कुछ आपने ये BCDE आपने कंप्लीट करना है। याद है ना भाई आरती, हमने यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला, जस्ट टू प्रूव हर पॉइंट दैट यस मूवी गोइंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो वो जो डिटेल अगर आपको याद है या आपको लगता है कि यार ये भी उसमें ऐड हो सकता है तो ऐड कर दें प्लीज़। ये होना चाहिए कि Können Sie das bitte schreiben? B, moving like a snail until fix car in the parking, ठीक है। सही है। And what about DE? would have to get seat firstly ओके, and ठीक है, बना ले एक कोई भी रीज़न अपनी बता दो। अगर आपको ये लगता है कि जी अब्बा को कोई दोस्त देख लेगा तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, इट्स फाइन। don't get seat near to my friend. सही, दैट्स ओके। Moving to the second paragraph, sir. What is the topic sentence of the second supporting paragraph? And then 4, how would you support that topic sentence? By what evidences? Expense. पता नहीं, पहले सेंटेंस बनाए उसके बाद एविडेंसेस को सोचे ना। दूसरा था वैसे वो शी वॉज बैटलिंग एन अनहेल्दी एपेटाइट, अनहेल्दी स्नैक्स ऑफ द कंसेशन स्टैंड। बस सर एक और पैराग्राफ फिर छुट्टी, दैट्स इट। आज हमने सिर्फ एक ऐसे का वो सीखा, समझा, मॉडल, स्ट्रक्चर। And I don't want to become a fatty one. Okay. Fatty sometimes get too offensive. Don't want to become an unhealthy person. Yeah. Okay. The second topic sentence is then supported by the following details. At home, only snacks are celery and carrot sticks. Theater is like a 7-Eleven filled with seeds and fresh popcorns. और क्या था सर?
Yes, Aman, that is good. There was one more point. Gum on the floor, yes, and something of the size of small automobile seemed to jump into her hands. What was that? That is paragraph 3. हम एक पैराग्राफ की डिटेल को दूसरे पैराग्राफ में कभी भी नहीं डालेंगे. Milk duds, yes. You're forgetting chocolate bars, the easiest one of them all. Don't you remember? Chocolate bars, people, right? Chocolate bars. Diet drink, yes. What's the topic sentence of the third supporting paragraph, and then what were the evidences that she used? This was something related to the people. Man, who was commenting about the stars? That is already mentioned. Adults were doing that. What were the children doing? What were the teenagers doing? Talk about that. Wouldn't it be better to say the people create distractions? People of all ages create distractions. People who were trying to impress friends talking with each other. ठीक है? सही है? तो रैप अप करते हैं पूरा. यानी आज हमने देखा कि भाई ये हमारे कैसे होता है. ऐसे के अंदर हमने कंक्लूजन समेत 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं. सर पहले पैराग्राफ को कहते हैं हम इंट्रो में होता है हुक या अट्रैक्टिव रिमार्क्स, और उसके बाद हमारे पास होता है एक थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम क्या रखते हैं उसमें एक प्लान ऑफ डेवलपमेंट होता है उसी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर. सो दैट थीसिस स्टेटमेंट ओपन्स अप इनटू अ बॉडी, यानी दैट ओपन्स अप इनटू 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स. ईच पैराग्राफ इज कॉल्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ 1, 2, 3, and then supporting paragraph will have one topic sentence and the specific evidences for that. vocab की लिस्ट भेज देंगे ग्रुप में. जल्दी से मुझे एक मैसेज करो ग्रुप में ताकि तुम लोग का ग्रुप सामने आए और फिर मैं अभी भेज देता हूँ उसमें. ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. auf Wiedersehen, au revoir, अल्लाह हाफ़िज़.